Length, mass, and temperature are all SI based quantities. Okay. State two other SI based quantities. Units नहीं मांग रहा, quantities मांग रहा है. तो यार मुझे अपना माइक खोल के बताओ कोई ऐसी दो और quantities बताओ. Yes, anyone? जल्दी Moles बताओ. and time. हम्म. Time and moles. मोल्स तो यूनिट है बेटे. मोल्स तो यूनिट है. So अमाउंट ऑफ मैटर आप कह सकते. amount of a substance and time. अमाउंट ऑफ मैटर. और मेरे पास एक और हो जाएगी, टाइम हो जाएगा. डेफिनेटली यस. आप एक और भी इसमें कोड कर सकते थे. करंट भी एक पॉसिबल है. ठीक है, करंट भी हमारे पास है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो कोड करंट. बी केयरफुल. इसने एसआई बेस्ड क्वांटिटीज बोला, यूनिट्स नहीं बोले हैं. मोल अगर आप कोड करते हो तो मोल तो यूनिट हो जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास. फिर ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी मे बी डिटरमिन्ड फ्रॉम एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम यूजिंग दिस इक्वेशन. ओके, आई होप दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. या डेफिनेटली यस. Where L is the length of the pendulum. ठीक है, एक मिनट, let me just. And T is the period of oscillation. In an experiment, the measured values for an oscillating pendulum are given to us. We can see that हमारे पास length भी है, हमारे पास time भी है. इन सब की percentage uncertainty भी given है. Your target first is to find the acceleration of free fall. इसके लिए हम लोग जो utilize करेंगे वो ये वाली values use करेंगे. So let's just input the values and be done with it. So G is actually going to be 4 pi square multiplied by the length है. Length की value हमारे पास meters में है, so that definitely that is good. So 1.50 divided by t square का मतलब है 2.48 seconds का square. Now let's just input this value into a calculator and let's see what the value is. So 4 shift pi square multiplied by 1.50 और फिर इसके बाद divided by हमारे पास brackets के अंदर आएगा 2.48 एंड रेस टू पावर स्क्वायर किया. अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, let me just get rid of some of the papers over here because that is distracting. So finally the answer is पता नहीं कितना आ रहा था, दोबारा कोई निकाल के बताएगा मुझे? Oh my god. 9.6. 9.6, approximately 9.6 meter per second squared. Okay, so that is it. ठीक है. फिर मुझे ये कह रहा है कि भाई determine the percentage uncertainty in the value of G. Okay, so now this is important. अगर हमें percentages निकालनी है तो याद करो कि since हमारे पास quantities multiply और divide हो रही हैं तो हमें पता है कि percentage uncertainties add up होती हैं. दूसरी चीज ये होती है कि अगर पावर लगी हुई होती है तो वो पावर उस percentage के साथ multiply हो जाती है. Apparently, we already have the percentage uncertainties given to us, so it's a matter of simply addition and multiplication. So let's see. Percentage, आप ये लिख लेना, percentage uncertainty in G must be equal to percentage uncertainty in L plus 2 times the percentage uncertainty in T. ये हम लोग करेंगे तो percentage uncertainty in L कितनी है? 2% है. Plus 2 times the percentage uncertainty in T कितनी है? 3 times. So 2 plus 2 3s are 6, so that is going to be 8% overall. So 8% हमारे पास आ जाएगा plus minus. ठीक है, so ये हमारे पास आ गई percentage uncertainty in G भी आ गई हमारे पास. फिर मुझे ये कह रहा है use your answers in B1 and B2. Okay, so let's look at this thing. B1 में हमारे पास ये value है. B2 to determine the absolute uncertainty of the calculated value of G. मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल ये है कि यार absolute uncertainty कितने significant figure तक होती है? 1 significant. 1. 1. सही है. सो हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे निकालनी होगी तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ABS अनसर्टेनिटी इन G must be equal to 8 divided by 100 multiplied by जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी? वो वैल्यू आ रही थी 9.6. ठीक है, so let's just find it out. So that is going to be 8 divided by 100 multiplied by 9.6 किया और ये मेरे पास आ रही है 0.768. तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसको अगर हम लोग 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.768 मेरे पास वैल्यू आ रही है, उसको राउंड ऑफ करके बताओ कितनी हो जाएगी? Plus minus 0.8. बिल्कुल सही बोला आपने. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.8. तो ये हमारे पास आ रही है एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी. ठीक है,
कुछ चीजें मैं आप लोगों से भी पूछूंगा so that you are alert all the time. So this is a 6 mark question and this is done. आप year भी देख लो, ये 2020 का question था. So apparently this question was very easy marks थे. यार ये वाला chapter आता है ना पेपर 2 के अंदर, एक बार इसके सबसे marks पहला पार्ट दिखा देंगे इसका? जी बेटे, बस एक सेकंड पिक्चर ले रहा हूँ बस। ठीक है. ओके सर। ओके, नेक्स्ट स्टेप. फिर मेरे पास ये आता है स्टेट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सिमिलैरिटी इसमें क्या हो सकती है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगी सिमिलैरिटी? एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अरे सिमिलैरिटी बोला है. ये दोनों both में are मैग्नीट्यूड magnitude होता है। क्वांटिटी है। सर ऐसा यूनिट सेम है. Exactly, same SI unit, same SI unit. Now that sounds very professional. Same SI unit और इन दोनों का हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा 4. ठीक है. डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस एक ये में है. डायरेक्शन है, एक में नहीं है। Exactly, distance has no direction. Distance has no direction. इसके साथ जो है ना मैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए बीच में लिख लेता हूँ स्केलर. ठीक है. और हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट has a direction and this is a pure vector quantity. ठीक है, ये भी हो गया. फिर मेरे पास ये कहता है a student takes several measurements of the same quantity. Okay, several measurements ले रहा है हमारे पास same quantity. Just what? This set of measurement has high precision but low accuracy. Describe what is meant by high precision. High precision का मतलब होगा कि जितनी भी measurements है ये करीब एक करीब दूसरे के होती है बहुत ना, जो close होंगे. बहुत करीब करीब होती है Exactly. प्रिसिशन। तो ये हो जाएगा हाई प्रिसिशन का मतलब ये है the measurements are close to each other. ठीक है, measurements are close to each other. High precision का मतलब are close to each other. ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो are close to the mean value of the measurements. ये भी आप लिख सकते हो. मैंने इसको verbally बोल दिया है. अभी मैं easy रख रहा हूँ चीजों को. उसके बाद हमारे पास कहता है low accuracy. अब low accuracy का मतलब ये होगा कि जो आपकी जो true value है उससे सर उससे दूर measurement होती सारी है, दूर ट्रू होगी. वैल्यू से दूर होती है। अब करीब और वो दूर हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, measurements are uh, far away, low accuracy ना, far away from the true value, from the true value. यहां तक भी पहुंच गए, ये भी हो गया. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ रहा है यूज एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन in terms of force to show that the SI base units of energy are this. अच्छा, तो हमारे पास work done किसके बराबर होता है? Work done is equal to force into distance होता है. तो हमारे पास ये लिखना जरूरी है क्योंकि हमें इसने बोला इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बोला है. तो फोर्स क्या हमारे पास यूनिट होते हैं भाई, इसको आप लिख लो जस्ट इन केस से 2 मार्क्स का. तो MA मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एंड दैट शुड बी इक्वल टू, इसके यूनिट्स खोलते हैं तो ये हो जाएगा किलोग्राम meter per second squared multiplied by distance. So eventually we have kilogram meter square S minus 2. So there we have it. This is the unit of work done as well as energy. फिर ये मुझे कहता है the energy stored in an electrical component is given by this expression where Q is a charge and C is a constant. Okay, use this in equation and the information in A to determine the SI base units of C. बच्चों वाला सवाल है. C को आप सब्जेक्ट बनाओगे, 2 को आप इग्नोर कर दोगे, this 2 should be ignored and the C is equal to, क्योंकि इसके हमें SI base unit चाहिए ना, तो ये हो जाएगा Q square over E. ठीक है, इसके हमें यूनिट्स निकालने हैं. तो भाई चार्ज का यूनिट क्या होता है हमारे पास? AS Anyone? ampere seconds. एग्जैक्टली इसका जो यूनिट बनता है वो होता है एम्पियर सेकंड्स होता है. ठीक है, ये याद रखना कि चार्ज कूलम होता है, कूलम को आप खोलते हो तो एम्पियर सेकंड्स के बराबर होता है. एम्पियर खुद बेस यूनिट है और सेकंड्स भी एक बेस यूनिट है. तो इसका मतलब है कि ऊपर आ जाएगा एम्पियर सेकंड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई के यूनिट्स. तो हमारे पास वर्क डन के यूनिट्स के बराबर होगा. तो इसका मतलब है के जी एम स्क्वायर एस माइनस 2 और इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर एस स्क्वायर ओवर के जी एम स्क्वायर एस माइनस 2. यहां तक भी पहुंच गए. अब हमारे पास सबको ऊपर फेंकते हैं तो ये हो जाएगा के जी -1. बी केयरफुल. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर
m -2 के बराबर हो जाएगा, और सिंस ये s -2 था, अगर ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसका मतलब है s raised to power 4 हो जाएगा। कन्विंस योर सेल्फ दिस इज करेक्ट। आगे पीछे आप लिख सकते हो, लेकिन इनकी पावर्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कन्विंस योर सेल्फ दिस इज करेक्ट। शुड आई मूव फॉरवर्ड? चले आगे। Yes, sir. ओके। मेजरमेंट्स of a constant current in a wire are taken using an analog ammeter। अच्छा, कांटे वाला जो मीटर होता है वो यूज कर रहे हैं। For these measurements describe one possible cause of random error। random error कैसे आ सकता है सर वो वायर को Sir, कभी weak प्रेस कर judgment. दिया हो ज्यादा जोर से। बेटे? नहीं 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 नहीं। क्या हो गया? एनालॉग एमीटर में हमारे पास रैंडम एरर कैसे आ सकता है? क्या हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं? जरा इधर उसने देखो। गलत रीड किया होगा। The reading are taken from different angles leading to parallax। कह सकते हैं हम लोग। ये हो सकता है क्या आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है टू दैट स्केल एज वेल एज द पॉइंटर, तो जाहिर सी बात है आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों से उसको मीटर को देखोगे तो हमारे पास पैरेलैक्स एरर आ सकता है, रैंडम एरर ये हो गया। सिस्टमैटिक एरर इसमें क्या आ सकता है एमीटर के अंदर? Sir, zero error. Zero error. बिल्कुल जीरो एरर, जीरो एरर आ सकता है हमारे पास, जीरो एरर। ठीक है। फॉर दिस में डिस्क्राइब वन पॉसिबल कॉज ऑफ जीरो एरर, हमें डिस्क्राइब भी करना। जीरो एरर अगर होगा तो क्या होगा? इसका मतलब है कि व्हेन जीरो करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर, zero reading is not being displayed। zero reading, zero current is not being displayed। zero current is not being displayed, not being displayed। सही है। ये भी हो गया हमारे पास, 6 मार्क्स हमारे पास फ्री के मिल गए। नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, ये वाला सवाल थोड़ा सा वैसा है जो कि वेव्स के साथ कनेक्टेड है, बट स्टिल वेरी मच रेलेवेंट। आई होप सो कि आपको ओ लेवल वाली फिजिक्स आती होगी। खैर, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस। ओके, स्टेट द वेवलेंथ इन मीटर्स ऑफ द वेव। तो भाई हमारे पास हो जाएगा 85 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता, तो आप एक काम करो कि डेसिमल वैल्यू को एक स्टेप इधर पीछे करोगे, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास, इधर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगी 8.5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख कर आओगे एग्जामिनेशन के अंदर। अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन टेराहर्ट्ज ऑफ द वेव। यार याद करो, आपके पास फॉर्मूला होता था ओ लेवल्स में, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता था। मैं आप लोगों से सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी स्पीड कितनी होती थी? 3 into 10 की पावर। सिंपल हैज दैट। तो इसका मतलब है कि स्पीड तो हमें पता है 3 इंटू 10⁻⁸। फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, पहले हम लोग हर्ट्स में निकालेंगे, उसके बाद वील कन्वर्ट इट इनटू टेराहर्ट्ज। तो मेरे पास वेवलेंथ कितनी आ रही है? वेवलेंथ आ रही थी हमारे पास 85 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, मैंने वही वैल्यू कोट की है जो पेपर में गिवन थी। अब इसके बाद लेट मी जस्ट यूज अ कैलकुलेटर। सो फ्रैक्शन मोड ऑन करता हूं, 3 इंटू 10⁻8 किया, और फिर इसको डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे 85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 किया, एंड वी गेट द फ्रीक्वेंसी एज, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है 3.5 इंटू 10⁻12 हर्ट्स। तो जाहिर सी बात है टेरा का मतलब ही 10⁻12 होता है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3.5। सही है, ये हो गया 3.5 टेराहर्ट्ज में आ गया। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला सवाल ये अभी आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको टेबल एक मेमोराइज करना होगा वेव्स का। जब वेव्स आएगा, आई थिंक अपेरेंटली इट इज गोइंग टू कम इन द सेकेंड टर्म, तो फिर ये आप कर सकोगे। वो टेबल मेमोराइज करना होता है। मैं आपको फिर भी बता देता हूं, ये बेसिकली इंफ्रारेड रीजन है, इंफ्रारेड रीजन। वेल अभी वो टेबल नहीं है, वो रिकॉल वाला सवाल होता है। रिकॉल के लिए वो टेबल आपको बाय हार्ट मेमोराइज करना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेट
right now we don't have the resources available, but I'm just quoting the value because I know it. खैर ये हो गया. फिर ये कह रहा है the current I in a coil of wire produces a magnetic field. Okay. The energy E stored in the magnetic field is given by this expression. Okay. Okay. Where L is a constant, the manufacturer of the coil states that the value of L in SI base units is this. इसके अंदर जो ये जो L है हमारे पास, इसके अंदर percentage uncertainty quoted है. The current I in the coil is measured as this. इसमें absolute given है. एक काम कर लेते हैं कि इसकी भी हम लोग percentage निकाल लेते हैं just in case. 0.02 divided by 0.5 multiplied by 100 करेंगे तो this is coming as 4%. ठीक है. 0.02 divided by 0.5 multiplied by 100 क्या 4% आ गई. ठीक है. अच्छा फिर ये कह रहा है the values of L and I are used to calculate E. Okay. Determine the percentage uncertainty in the value of E. Percentages के लिए इसका तो कोई काम है नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं percentage uncertainty in E. ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है. मेरा स्टाइल है 2 multiplied by percentage uncertainty in I plus percentage uncertainty in L. Okay. So 2 multiplied by, I think that is 4 plus, oh my God, plus ये 4 है मेरी. 4 हो गया. फिर प्लस हमारे पास L के अंदर कितनी आ रही है परसेंटेज अनसर्टेनिटी 5 आ रही है. So ये हो जाएगा 2 into 4 plus 5 and that gives me 13%. ठीक है. 13% प्लस माइनस हो गया. 6 नंबर आपको इधर भी मिल गए. नेक्स्ट स्टेप. फिर ये कह रहा है डिफाइन डेंसिटी. डेंसिटी हमारे पास क्या होता है? डेंसिटी होता है यार ओ लेवल से याद मास होगा पर यूनिट मास पर यूनिट ratio वॉल्यूम. of mass to volume. सही है. रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम भी कह सकते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हो. फिर ये कह रहा है a smooth pebble made from uniform rock has the shape of an elongated sphere as shown in figure 1.1. The length of the pebble is L. The cross section of the pebble in the plane perpendicular to L is circular with a maximum radius R. A student investigating the density of the rock makes measurements to determine the values of L or whatever. अच्छा. State the name of the measuring instrument suitable for making the measurements of L. अब सीधी सी बात है क्योंकि ये रॉक का जो साइज है कोई इतना बड़ा तो नहीं है. अब इसको मेजर करने के लिए आपका तकरीबन ये आ रहा होगा 12.4 सेंटीमीटर 12.42 सेंटीमीटर आ रहा होगा. एंड अपेरेंटली हमारे पास इसके अंदर अनसर्टेनिटी भी गिवन है. ऐसी चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है कैलिपर्स यूज करते हैं हम लोग. ठीक है. तो कैलिपर्स आप यूज कर सकते हो, भले डिजिटल हो या आपके पास वर्नियर हो. यू कैन गो फॉर एनीवन. ये भी हो गया. फिर मुझे ये कहता है कि डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ आर. उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू नजर आ रही है आपके पास. इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है तो निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं. बल्कि इनफैक्ट 0.004 divided by 0.0420. Okay. 0004 था. माय गॉड, एक भी जीरो मिस हो गया तो सारे गलत हो सर जाता. एक क्वेश्चन था. हम लोग एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हम लोग मीटर रूल क्यों नहीं यूज कर सकते. बेटे मीटर रूल की इतनी प्रिसिशन होती नहीं है बेटे. कहां से आएगी उसमें? वो क्या इतने डेसिमल प्लेसेस तक रीड करेगा? सीधी सी बात है, कहां से कर सकता है? वो रीड कर सकता था 12.4 तक मीटर रूल होता. 12.42 तक तो इसकी औकात ही नहीं है रीड करने की. सही है. अच्छा ये हो गया हमारे पास. ये हमारे पास हो जाएगा डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ आर. तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी, ये आ रही है मेरे पास. इसको मैंने किया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं. ये मेरे पास आ रहा है 0.95. इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास आ रही है 0.95. 0.95%. ठीक है. ये मैंने निकाली तो ये वैल्यू मैं इधर ही कोट कर लेता हूँ 0.95%. ठीक है. ये भी हो गया हमारे पास. इनफैक्ट प्लस माइनस लिख लेते हैं इधर. नेक्स्ट स्टेप. The density of the rock from which the pebble in B is composed is given by this expression. We can see that where n is an integer. Integer का मतलब है 1 2 3 4 5 and k is a constant. Okay, with no units that is equal to 0. अच्छा ये हमारे पास k की वैल्यू भी हमारे पास given है
वो कांस्टेंट है, नो यूनिट्स है, और सीधी सी बात है उसकी वैल्यू में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है. ओके, योर टारगेट इज टू यूज SI बेस्ड यूनिट्स टू शो दैट n is equal to -2. Okay, we need to prove this thing. So k को तो इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, मुझे सिर्फ n की वो पावर निकालनी है. सो इसके लिए हम लोग होमोजेनिटी यूज करते हैं. डेंसिटी के क्या यूनिट्स होते हैं? केजी पर मीटर क्यूब. सही है, ये लिख लिया मैंने. m क्या था? मास था, तो मास की यूनिट क्या होंगे? kg होगा, kg लिख लिया. r की यूनिट्स क्या होंगे? r इज द रेडियस, तो m लिख लिया, m के ऊपर n लगा हुआ है. एंड फिर k के तो कोई यूनिट्स नहीं है. l जो था आई थिंक सो लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट हमारे पास होता है मीटर्स. ओके, ये लिख लिया हमारे पास. अब फाइनली मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा. पहले मैं एक बार और सिंप्लीफाई कर लूं. किलोग्राम m-3 इज इक्वल टू kg, और ये हो जाएगा m n-1, लिख सकते हैं इसको, लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज किया है मैंने. और उसके बाद मैं इन दोनों को लिख सकता हूं बराबर. तो मैं इधर लिख रहा हूं फॉर m-3 is equal to n-1, so apparently n should be equal to -2. सही है, तो ये हमने प्रूफ कर लिया इधर. तो n की वैल्यू -2 आ रही है, प्रूफ हो चुका है. आप चाहो तो इसको एक दफा देख लो. ठीक है, चलें आगे. सवाल बहुत सारे हैं, मुझे बहुत सारे कराने हैं. फिर ये कहता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो. अपेरेंटली मैंने एक पहले ही काम कर लिया था कि इनकी सबकी परसेंटेजेस इधर लिख ली हैं, क्योंकि बार बार ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज टैबलेट है. ठीक है, अब मुझे बोल रहा है कि यार इसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो. तो रो का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? रो का पहले हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है रो इज इक्वल टू MR -2 डिवाइडेड बाय KL. ये आ रहा है हमारे पास फॉर्मूला. अब सबसे बड़ा मसला ये है कि -2 वाली पावर के साथ तो हमें खेलना ही नहीं आता. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इस -2 को उठाकर नीचे फेंक देते हैं, यानी R को नीचे फेंक दें. मैथमेटिकली दैट इज अ करेक्ट मूव. सो डेंसिटी शुड बिकम M ओवर KL R माइनस, बल्कि इनफैक्ट ये अभी 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. यहां तक पहुंच गए. अब हम लोग इसको हैंडल आउट कर सकते हैं. भाई k में तो कोई परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ही नहीं, तो k को तो इग्नोर कर दो आप. अब मैं इधर लिख रहा हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो मस्ट बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन m. फिर आ जाएगा प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन L plus 2 times the percentage uncertainty in R. Okay. So let's just utilize the values that are already in the table above. So M में कितनी आ रही है भाई परसेंटेज? वो आ रही है 0.08. प्लस हमारे पास L में कितनी आ रही है परसेंटेज? वो आ रही 0.093 है. है 0, हाँ सॉरी 0.95, सॉरी 0.093, माय गॉड 0.093. प्लस L में कितनी आ रही है हमारे पास? 0.08. प्लस 2 टाइम्स R में कितनी आ रही है हमारे पास? 0.95. So there we have it. Let's just find it out. The total percentage uncertainty 0.093 plus 0.08 plus 2 times 0.95. ठीक है, ये आप एक्सक्यूज मी सर. लगाओगे. जी बेटे. तो सर इन शॉर्ट जब हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारे पास पावर का साइन इन परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैटर नहीं करता. क्या पावर का साइन? हाँ, टेक्निकली नहीं करता. सही है, तो माइनस साइन को इग्नोर भी करके आप डायरेक्टली जा सकते हो. सही है, क्लियर है. तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2.1%. ये आ जाएगा प्लस माइनस 2.1%. ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास. अब ये एक बात जरा नोट करना, ये 3 मार्क का सवाल था. अब 3 मार्क के लिए ये वाला टेबल भी आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा. सो ऑब्वियस ही बात है कि ये वाला सवाल अच्छा खासा आपका टाइम ले जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद मुझे कहता है कि डिटरमिन रो with its absolute uncertainty, give your values to the appropriate number of significant figures. Okay. So सबसे पहले तो हमें इसकी absolute uncertainty निकालनी होगी. पहले तो रो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. That is a big part.
सो रो इटसेल्फ शुड बी इक्वल टू, हमारे पास, मैं इसमें से केयरफुली वैल्यूज नोट डाउन कर रहा हूं, सबके यूनिट्स मेरे पास सही है। तो इसका मतलब है कि m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1.072, यहां तक भी पहुंच गए। k की वैल्यू अपेरेंटली हमारे पास गिवन थी, k की वैल्यू है 2.094। ओके, सो ये हो जाएगा 2.094। और l की जो वैल्यू है, l की वैल्यू हमारे पास है 0.1242। और फिर मेरे पास r की जो वैल्यू है वो आ रही है 0.0420, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। बहुत ही केयरफुली आपको ये काम करना है, पहले तो इसकी वैल्यू निकालो यार, लेट्स फाइंड इट आउट। सो 1.072 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2.094, फिर मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 0.1242। मैं जो है वो फ्रैक्शन मोड यूज कर रहा हूं, और फिर मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट्स में आ रहा है 0.0420 रेस टू पावर स्क्वायर। अब इस तरह की जब कैलकुलेशंस होती है ना, प्लीज 2 दफा कर लिया करो, जस्ट इन केस। मेरे पास अभी जो रो की वैल्यू आ रही है, तकरीबन आ रही है मेरे पास 2336.67 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्लीज वेरीफाई कि आप लोगों के पास ये आ रही है, हाँ या ना? यस सर, यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये यहां तक पहुंच। अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अभी इसकी मैंने प्रिसिशन का कोई खास ख्याल रखा नहीं है, मैं वेट करूंगा कि मेरे पास पहले एब्सोल्यूट तो आ जाए, फिर उसके बाद देखेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड इट आउट। अब हम लोग निकाल सकते हैं एबीएस अनसर्टेनिटी इन रो मस्ट बी इक्वल टू 2.1% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू 2336.67। निकाल लेते हैं। जो भी वैल्यू मेरे पास कैलकुलेटर में आई थी, मैं उसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.1 से डिवाइडेड बाय 100। और ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, तकरीबन आ रही है मेरे पास, अगर आप निकालो कितनी आ रही है आपके पास, 49.07। तो 49.07 आ रही है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक होती है, 1 तक होती है। तो फिर कितनी आ जाएगी, 50 आ गई, प्लस माइनस 50। ओके, अब यहां तक तुम लोग पहुंच गए। अब क्या करोगे कि सबसे पहली चीज है, इस वैल्यू को उठाकर इसके नीचे लिख लिया करो। 50 लिख लिया, डेसिमल वैल्यूज इसमें नहीं थे, तो इसका मतलब है ये वाले डेसिमल वैल्यूज भी गए, कैंसिल आउट कर दिया। और एक जीरो यहां पर है और यहां पर 6 है, तो ये 6 भी गया। अब ये जब 6 जाएगा तो अपना इंफ्लुएंस इस पे डाल के जाएगा, यानी जो फाइनल वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 2340, यहां पर आ गई, और प्लस माइनस 50। ये आपका आंसर होगा। एक दफा इसको गौर से देख लो, एक दफा इसको गौर से देख लो कि मैंने किया लेकिन क्या सर है। आपने तो बोला था कि जब आंसर लिखते हैं तो दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर सेम होने चाहिए। नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा था, मैंने कभी भी नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो 1 होते हैं। सही है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद फिर आप ये चीज नोटिस करोगे कि अगर यहां पर कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहां पर भी कोई डेसिमल वैल्यूज नहीं होंगी। सही है। और दूसरी बात है कि हमेशा याद रखो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल ओवरराइड ऑल द प्रिसिशन ऑफ द फाइनल आंसर। अभी ये चीज सीख लो, इसको अभी राइट नाउ इसको कंफर्म करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही है, ठीक है, हो गया ये। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन बोलता है कि भाई डिफाइन फोर्स। अब अपेरेंटली अब एक मसला ये है कि ये सवाल इसने बोला डिफाइन फोर्स, तो ओ लेवल्स में तो आप मास इनटू एक्सेलरेशन करके आते थे। अब यहां पर आपके पास होता है, इसको हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात याद रखना कि ए लेवल्स में फोर्स की डेफिनेशन सिर्फ यही होती है, चाहे एमसीक्यू में आ जाए चाहे पेपर 2 के अंदर आ जाए। फिर मुझे बोलता है कि स्टेट द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ फोर्स। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी किलोग्राम एम एस माइनस 2, ये तो हमें वैसे ही आता था। फिर मुझे ये बोलता है कि द फोर्स एफ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। यूज द अबव एक्सप्रेशन टू डिटरमिन द बेस यूनिट्स ऑफ ई। इसको हम लोग कहते हैं
बेसिकली ये परमिटिविटी होती है हमारे पास, ये A2 में आपके पास आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये सवाल हम लोग करते हैं। सो इसका मतलब है कि E को मैं पावर सब्जेक्ट बना लूं, और ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F और R स्क्वायर। सही है। 4 पाई की तो कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कांस्टेंट है। तो अब मेरे पास इसके यूनिट्स हम लोग बना सकते हैं। सो देयरफॉर ई के जो यूनिट्स बनेंगे हमारे पास, वो हो जाएगा Q1 और Q2 हो जाएगा एम्पियर सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय एम्पियर सेकेंड्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम ms-2 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सो लेट्स डू दैट। ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर s स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा किलोग्राम m³ s-2। यहां तक भी पहुंच गए। अब इसको सबको ऊपर उठा के फेंकना है हमें, तो ये हो जाएगा kg-1 a स्क्वायर, फिर मैं m को भी ऊपर फेंक रहा हूं तो m-3 हो गया, और s को जब ऊपर फेंकेंगे तो s⁴ हो जाएगा। कन्विंस योरसेल्फ दिस इज ट्रू। आगे चलते हैं। प्लीज कंफर्म दैट यू कैन हियर मी। आ रही आवाज? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये आ रहा है, an analog voltmeter is used to take measurements of a constant potential difference across a resistor. For these measurements, describe one example of a systematic error. क्या आ सकता है इसमें? वही है जो एमीटर के साथ था, वही सारी चीजें Yes, sir. इसमें लिख देना। ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा, आगे यार चलते हैं। आप बेटे प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। उमर बी केयरफुल। फिर ये कह रहा है the potential difference across a resistor is measured as this. Okay, apparently इसके अंदर हमारे पास absolute uncertainty given है। तो पहले मैं एक काम कर रहा हूं, हमारे पास है इसके अंदर absolute uncertainty है, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, और ये आ जाएगा 2%। ये भी मैंने निकाल ली जस्ट इन केस मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए। The resistor is labeled as having a resistance of this. Calculate the power dissipated by the resistor. पहले तो पावर निकालनी है। याद करो ओ लेवल्स में पावर के 3 फॉर्मूलास थे, IV था, P is equal to I square R था, और P is equal to V square over R था। Apparently in this question we happen to have the potential difference as well as the resistance. We can easily find the power, so we'll go with this one. पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ओवर रेसिस्टेंस हमारे पास कितनी है 125। तो ये आप निकालोगे तो ये हो जाएगी डिवाइडेड बाय 125 किया, एंड वी हैव अ वैल्यू ऑफ 0.2 वॉट्स। सो देयर यू हैव इट, ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में मुझे बोलता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेटेड पावर। So percentage uncertainty in, लिख लेते हैं, percentage uncertainty in power should be equal to 2 times the percentage uncertainty in V, फिर plus percentage uncertainty in R। वो मैंने सारी ऊपर वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2%, फिर आ जाएगा प्लस, एक मिनट गाइस होल्ड ऑन, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, उसमें बैठोगे और स्टार्ट का बटन दबाओगे गाड़ी का, समझ गए ना? अच्छा, फिर ये बोल रहा है कि परसेंटेज अनसर्टनिटी इन आर। ओके, सो परसेंटेज अनसर्टनिटी इन आर हमारे पास कितनी आ रही थी? वो आ रही थी 3%, तो ये हो जाएगा 3%। सो फाइनली लेट्स डू दिस। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 किया, एंड वी गेट 7% प्लस माइनस। एक्चुअली परसेंटेज की साइन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव। ये भी हो गया। फिर मुझे बोलता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पावर विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट्स एन इजी केस। सो पहले तो हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन
P is equal to 7% divided by 100 multiplied by the value of the power itself, which is actually 0.2. इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालेंगे. 7 divided by 100 multiplied by 0.2 किया, और ये मेरे पास आ रही है, कितनी आ जाएगी मुझे आप लोग बताओ. प्लस माइनस कितना लिखूंगा मैं? 0.01. 0.01 हो गया. सही है. ये आ रही थी वैसे 0.014, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर तक 0.01. ठीक है, ये भी हो गया. अब मेरे पास जो है, अब जरा इधर नोट डाउन करो. अब यहां पे मेरे पास गिवन है 0.2 गिवन है, 0.2 गिवन है, और यहां पर मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं. तो इसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? इसका फाइनल आंसर आप क्या कोट करोगे? 0.02 प्लस माइनस मैं इसमें क्या करूंगा? 0.20 प्लस माइनस 0.01. ये आपका तरीका होगा इसका फाइनल आंसर कोड करने का. ठीक है, हो गया, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस. अब स्ट्रेस आपके फर्स्ट टर्म में आने वाला है, दूर है अभी. थोड़ा सा मैं ही बता देता हूं कि स्ट्रेस इटसेल्फ इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. अब आप बोलोगे कि सर ये प्रेशर है. हाँ, उसी जैसा ही होता है कुछ. खैर, फोर्स हमारे पास होता है किलोग्राम ms-2 डिवाइडेड बाय एरिया m स्क्वायर. तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे हमारे पास? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो किलोग्राम हमारे पास हो जाएगा m-1 s-2. तो ये हमारे पास इसके यूनिट्स बन गए. ठीक है, यहां तक भी पहुंच गए. फिर हमारे पास सवाल बोलता है कि द बीम PQ is clamped so that the beam is horizontal. We can see that a mass M of 500 gram is hung from end Q. Be careful, 500 grams में given है. ओके, तो यहां पे मैं वैल्यू लिख लेता हूं इसकी. तो ये हो जाएगा 0.5 kg. जरूरत आएगी तो यूज करेंगे. And the beam bends slightly as illustrated in figure 1.1. Okay. The length of the beam from the edge of the clamp R to end Q is 60 centimeters. So apparently this length is given to us as 0.6 meters. ठीक है, ये मैंने पहले ही कर दिया इसको कन्वर्ट. यहां पे भी लिख देता हूं just in case. 0.6 meters. The width B of the beam is 30 millimeters. Be careful, ये millimeters में given है. तो विथ हमारे पास जो है वो हमारे पास आ रही है 30 मिलीमीटर्स. ठीक है, तो विथ बी जो हमारे पास है दैट इज 30 मिलीमीटर्स. इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाद में. द मास m इज मेड टू ऑसिलेट वर्टिकली. द टाइम पीरियड t ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन टू अस. द पीरियड t इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. Your target is to determine E in gigapascals. Apparently, इसका जो यूनिट आ रहा था, ये जो हमारे पास आता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ही पैस्कल्स होता है क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इज अपेरेंटली पैस्कल्स. ओके, सो हम लोग निकाल लेंगे, सिर्फ ई की वैल्यू निकालनी है हमें और कुछ भी नहीं करना है हमें. अब इसको अप्रोच कैसे करें? इसको अप्रोच करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ई को आजाद करना है. ई को आजाद करने का एक ही तरीका है कि दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को आप स्क्वायर कर दो. सही है, दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को आप स्क्वायर कर दोगे. अब मैं वापस से जा रहा हूं इसमें. तो दोनों साइड्स को हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा स्क्वायर इधर भी किया और स्क्वायर पूरा इस साइड को भी कर दिया. अगर इस साइड को करेंगे, दोनों साइड्स को करेंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. रूट का साइन हट चुका है और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एम एल क्यूब डिवाइडेड बाय ई बी डी क्यूब. यहां तक भी हो गया. अब मुझे क्या करना है कि भाई मुझे E की वैल्यू निकालनी है. फिर उसके बाद हम लोग उसको गीगा में कन्वर्ट करेंगे. E की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो E को सब्जेक्ट बना लेते हैं. सो E शुड बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास हो जाएगा एम एल क्यूब डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा टी स्क्वायर बी डी क्यूब. यहां तक भी पहुंच गए. अब हमें इसके अंदर सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा painstakingly. So let's do that. So 4 pi square. I hope I have not made any mistakes. So just be careful. 4 pi square multiplied by 4 multiplied by mass इसका कितना था? 0.5 kg था. So 0.5 kg. Just confirming again.
मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हमारे पास कितनी आ रही थी, लेंथ हमारे पास जो आ रही थी 0.6 आ रही थी, तो 0.6 के ऊपर पावर क्यूब आएगा। फिर उसके बाद जो टाइम पीरियड आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 0.58 का स्क्वायर आएगा। फिर मल्टीप्लाइड बाय बी क्या था, द विथ बी इज 30 मिलीमीटर्स, तो इसका मतलब है बी की जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है, और ये आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ताकि ये मीटर्स में चली जाए, और इसके ऊपर हमारे पास कोई पावर नहीं है। मल्टीप्लाई बाय डी, डी जो है थिकनेस है वो हमारे पास 5 मिलीमीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और इसके ऊपर अपेरेंटली वी हैव अ क्यूब ओवर हियर। यू हैव टू पुट दिस कैलकुलेशन ऑफ, लेट्स डू इट। मैं कैलकुलेटर में फीड करता हूं इसको वैल्यू को, 4 पाई स्क्वायर multiplied by 4 multiplied by 0.5 multiplied by 0.6 का पावर कितना है, रेज टू पावर क्यूब किया है। फिर उसके बाद नीचे गए, मैं फ्रैक्शन मोड यूज कर रहा हूं, बी केयरफुल। सो 0.58 किया, इसके ऊपर स्क्वायर किया, फिर मैं पेन्स टेकिंगली इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किया, फिर मैंने दोबारा ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ हो गया, और उसके बाद इसको क्लोज करके इसके पावर लगा देंगे, रेज टू पावर क्या 3। ओके, सो रेज टू पावर 3 हो गया। अब फाइनली मैं इसका आंसर निकालता हूं, लेट फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड वी हैपन टू हैव दिस वैल्यू एज 1.35 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 10। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब एक मसला ये है कि हमें इसको गीगा पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो गीगा का मतलब होता है 10⁻12। इसका एक ही तरीका है कि मैथमेटिकली आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो या 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इसको बैलेंस आउट करने के लिए इसको आप 10⁻² से डिवाइड कर दो। दैट इज द ओनली वे। ठीक है, गीगा पास्कल में हमें करने के लिए करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.35 डिवाइडेड बाय 100 किया, और फिर मल्टीप्लाइड बाय, इसको कर लेते हैं, सॉरी ये हमने करेंगे तो हमारे पास ये 2 स्टेप पीछे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.014 कर लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻12, यानी ये हमारे पास गीगा पास्कल्स आ रहा होगा 0.014। जस्ट इन केस गाइस, कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू फाइंड दिस वैल्यू आउट अगेन, जस्ट इन केस। एक दफा और निकाल लो, मुझे लग रहा है कि कोई शायद कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। सर नहीं हुई है गलती शायद। यही आ रहा है, 10⁻10 तक था। अरे यार मैंने गलती कर दी है, ये 13 नहीं है। ओ माय गॉड, गीगा 10⁻9 होता है। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ओ माय गॉड। तो ये वाली जो वैल्यू आई थी, ये ओ माय गॉड, मैंने वैल्यू डिलीट कर दी। यहां तक पहुंचे थे, मेरी गलती हुई है इधर। अब जरा इधर सुनो, एक वेटिंग रूम में भी कोई आए, जरा देख लो उमर, यहां तक पहुंचे थे। गीगा निकालने के लिए भाई, गीगा इज 10⁻9 होता है, टेरा इज 10⁻12 होता है। तो यहाँ पर इसको 9 करने के लिए इधर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 13.5 इंटू 10⁻9। सो इसका मतलब है कि 13.5 गीगा पास्कल आंसर आना चाहिए। सो देयर यू हैव इट, जस्ट बी केयरफुल। टेरा का मतलब होता है 10⁻12, गीगा का मतलब होता है 10⁻9, नैनो का मतलब होता है 10⁻−9, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। जस्ट बी केयरफुल। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी यूज्ड टू, इसी का पार्ट है, द क्वांटिटी यूज्ड टू डिटरमिन E should be measured with accuracy and with precision. Explain the difference between accuracy and precision. आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, आई वोंट डिस्कस दैट, मैंने पहले करा लिया था। फिर ये कह रहा है इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, हाँ ये अच्छा सवाल है, द क्वांटिटीज L and T आर मेजर्ड विद द सेम परसेंटेज अनसर्टनिटी। ओके, सो इसका फॉर्मूला कहां गया हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, इस फॉर्मूला को मैं लेके चल रहा हूं, नीचे लेके जा रहा हूं उसको।
हमें चाहिए फॉर्मूला जस्ट इन केस। ये फॉर्मूला को मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि मुझे नजर आए और आप भी देख सको। ये है हमारे पास। अब इसने मुझे कहा है कि यार इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट द क्वांटिटीज एल एंड टी, यानी मेरे पास ये वाली क्वांटिटी, एक्चुअली मेरे पास ये वाला गलत सिलेक्ट हो गया, ये वाली क्वांटिटी और टी वाली जो क्वांटिटी है आर मेजर्ड विद द सेम परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ओके, state and explain which of these two quantities contribute more to the uncertainty in the value of E. Okay. अब इसको देखने के लिए आप एक चीज नोटिस करो कि भाई हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी एल की भी सेम है और टी की भी सेम है, लेकिन इसके ऊपर पावर 3 लगी हुई है। तो भाई 3 अगर पावर लगी हुई है तो 3 टाइम्स दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल हो जाएगी, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 टाइम्स दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी हो जाएगी। तो किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ? एल। जाहिर सी बात है एल होगा। ठीक है, सो इसका मतलब है कि आपको इस सवाल में लिखना पड़ेगा कि एल कंट्रीब्यूट्स मोर। ये मैंने लिखा, ये तो मेरे पास आ गया, और उसके बाद मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है। दिस इज बिकॉज percentage uncertainty in L is multiplied by 3. Percentage uncertainty in T is multiplied, लिए भी लिख कर आ जाओगे तो सही हो जाएगा, multiplied by 2. So this, इसका मतलब है कि this contributes more. हो गया ये वाला सवाल भी सॉल्व। ये बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल था ये वाला। खैर, इसके बाद आगे चलते हैं। फिर मुझे कहता है कि भाई डिफाइन पावर। पावर क्या होता था ओ लेवल्स के अंदर? एनीवन? rate of change of work, रेट ऑफ, हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन भी हम लोग कह सकते हैं, या रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक ये भी हो सकता है हमारे पास, और ये भी हो सकता है रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। दोनों में से कोई चीज भी लिख कर आ जाओ। पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम होता था, या एनर्जी कन्वर्टेड ओवर टाइम होता था। यहां तक भी पहुंच गए। फिर मुझे बोलता है कि यार शो दैट द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ पावर आर दिस। ओके, सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस 2 ओवर टाइम का होता है सेकेंड्स। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा किलोग्राम एम स्क्वायर एस किसके बराबर हो जाएगा? एस यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। सो देयर यू हैव इट, दिस इज प्रूव्ड। ये भी हो गया। फिर मुझे कहता है कि ऑल बॉडीज रेडिएट एनर्जी। द पावर P radiated by a body is given by this expression, where T is the thermodynamic temperature of the body, A is the surface area of the body, and K is a constant. Determine the SI base units of K. बहुत आसान काम है। तो हमारे पास हो जाएगा K को सब्जेक्ट बना लेते हैं, और ये हो जाएगा P ओवर, ये हो जाएगा A T रेज टू पावर 4। सही किया है मैंने? हाँ। फिर इसके बाद हमारे पास पावर की यूनिट्स हमें पहले ही पता है, तो वो हमारे पास से ऊपर अगर ये भी नहीं हो पाया तो एटलीस्ट ये तो गिवन है ना। सो ये हो जाएगा किलोग्राम एम स्क्वायर एस -3 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर आएगा, और टेम्परेचर है वो भी थर्मोडायनेमिक है तो केल्विन आएगा, तो के रेज टू पावर 4 हो जाएगा यहां पर। सही है। अब इसके यूनिट आप निकालोगे तो यूनिट इसके क्या बनेंगे? वो मुझे, ये कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली मेरे पास यूनिट बनेंगे किलोग्राम के रेज टू पावर -4 और एस रेज टू पावर -3। सो देयर यू हैव इट। ये भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक सवाल आया जो कि थोड़ा सा हटकर सवाल है, मैथमेटिक्स वाला सवाल बन रहा है। On figure 1.1, sketch the variation with t square of p. Okay. The quantity A remains constant. अच्छा, सही है। तो हमारे पास ग्राफ किसका गिवन है? वो है P अगेंस्ट टी स्क्वायर का ग्राफ है।
पहले तो मैं एक काम करूं कि इसको रीअरेंज करूं इस फॉर्मूला को, तो ये हो जाएगा P, हमारे पास एक्चुअली गिवन है P इज इक्वल टू K A T रेस टू पावर 4 है, यहां तक है। क्या मैं इसको एक काम कर सकता हूं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज तो हमारे पास कांस्टेंट चल रही है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर रेस टू पावर स्क्वायर हो सकता है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. लिख दिया। अब जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो हमारे पास टेक्निकली जो ग्राफ प्लॉट हो रहा होगा, वो ग्राफ मेरे पास ऐसा नहीं लग रहा कि y इज इक्वल टू x, यहां पर हमारे पास x स्क्वायर का ग्राफ होगा। टेक्निकली जो x है, वेयर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, इसका ग्राफ नहीं होगा हमारे पास, इसका, इस फंक्शन का ग्राफ। इस फंक्शन का ग्राफ आप मैथ्स में से याद करो, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक कर्व होता था। तो क्वाड्रेटिक कर्व हमारे पास इस तरीके से जाएगा, वो भी ओरिजिन से होता हुआ। ये आपका आंसर होगा। दिस इज अ प्योर मैथ क्वेश्चन एंड नथिंग टू डू विद फिजिक्स, बट यू कैन सी दैट इट इज बीइंग आस्क्ड। क्लियर है? Sir, can you repeat this once? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुन लो। मेरे पास, शुरू से करते हैं इस सवाल को, बहुत स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड ग्रेजुअली, दिस इज इंपॉर्टेंट। जरा इधर देखो, फॉर्मूला मेरे ऊपर पास फुल ऑफ था फॉर्म होगा। P इज इक्वल टू के ए टी रेस टू पावर 4, यही था फॉर्मूला। ग्राफ किसका प्लॉट करने को बोल रहा है? P अगेंस्ट टी स्क्वायर का कर रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू के ए टी स्क्वायर ओवर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो टेक्निकली जो ग्राफ हमारे पास प्लॉट हो रहा है, वो हमारे पास टी स्क्वायर के अगेंस्ट हो रहा है। क्या मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूं? ये तो कांस्टेंट हो गया, और हमारे पास जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये हमारे पास ऐसे नहीं लग रहा कि v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। x जो है वो खुद हमारे पास टी स्क्वायर के बराबर है, जो कि यहां पर है। ऐसा नहीं लग रहा? कन्विंस योरसेल्फ दिस इज ट्रू। Yes. तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे, तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक कर्व लाइक दिस। अगर डबल एज्ड होता तो यूं चला जाता। सही है? खैर, दिस इज डन, ये हो गया। ये हमारे पास सवाल आया था अक्टूबर नवंबर 17 के अंदर। हो गया ये वाला सवाल सॉल्व, आगे चलते हैं। सर, जी बेटे। ये हाइपरबोला जो आपने बनाया है, ये कर्व अपवर्ड्स कर रहा है, मतलब एक स्माइली फेस बन रहा है, तो जी, दिख रहा आपके है पास सर। अगर नहीं आता ना, सही, जरा सुनो, लेट मी प्रूव दिस टू यू गाइस, लेट मी प्रूव दिस टू यू गाइस। भाई आप एक काम करो, सिंपल इसका ग्राफ बना लेते हैं, y अगेंस्ट एक्स स्क्वायर का। सही है, y अगेंस्ट x का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि x हमारे पास टी स्क्वायर के बराबर है। यहां पे y है, यहां पे x है। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली, तो मेरे पास बल्कि 0 ली, तो y की वैल्यू भी 0 होगी, यानी यहां से स्टार्ट होगा। 1 ली, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इसकी वैल्यू भी 1 होगी, यानी हमारे पास ग्राफ जो होगा, एक मेरे पास कोऑर्डिनेट यहां पे आ जाएगा, एक रफ स्केच कर रहा हूं, ये 1 है, ये भी 1 है। उसके बाद जब मैंने 2 ली, तो मेरे पास y की वैल्यू 4 आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि कहीं यहां पर आ जाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी दैट इट्स अ कर्व। इज दैट क्लियर? यस सर। हो गया। आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। मैंने जितने मुझे कराने थे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब जरा सुन लो, पहली बात तो ये है कि टेस्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है, एमसीक्यूज भी हैं, बट इसी जैसी क्वेश्चंस आएंगे, इसी जैसे ही आपके पास सारी चीजें आएंगी। यही एक दफा रिवाइज कर लो, और कुछ एमसीक्यूज जो मैंने पहले शायद कराए थे वो वाले कर लो। टेस्ट बेहतरीन होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है? एनीवेज गाइस, टेक केयर, अपना बहुत बहुत एक ख्याल रखो क्वेश्चन अपना। आपने बताया था आप एक एमसीक्यू बाद में कराएंगे। वो एक एमसीक्यू था, वो खैर बहुत ही ओवरली अभी कॉम्प्लिकेटेड है, वो वाला मैंने उसकी वर्किंग भेज दी थी, वो अभी मेरे ख्याल से इतना रेलेवेंट नहीं है राइट नाउ। ठीक है, वो मैंने इसलिए भी छोड़ा हुआ है, वैसे मैंने करके भेज दिया था आप लोगों को, लेकिन बात ये है कि वो
ऐसा एमसीक्यू है कि यार पहले आप लोगों का जब कोर माइंडसेट बन जाएगा, एप्टीट्यूड लेवल बन जाएगा, यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू हैंडल सच क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी आप वेट करो, मैं प्रोग्रेसिवली चीजें मिर्च मसाला डालता जा रहा हूं। एंजॉय इट व्हाइल इट लास्ट। एनीवेज गाइस, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो।